براہ راست آپ کو میرپور خاص لیے چلتے ہیں جہاں بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اثرات جو نقصان یہاں ہوا ہے میرپور خاص ڈویژن میں ہوا ہے، میرپور خاص میں، سانگر میں، عمر کوٹ میں، بدین میں، نواب شاہ میں، وہ نقصان کہیں اور نہیں ہوا، اتنا نقصان کہیں اور نہیں ہوا ہے۔ اور ہمیں یاد ہے، یہاں کے عوام کو یاد ہے، پوری ملک کا عوام کو یاد ہے کہ جب 2011 میں اسی لیول کا بارش ہوا تھا اور فلڈنگ ہوا تھا تو پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا موبلائز کیا گیا تھا تاکہ ہم اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکے۔ وفاقی حکومت کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا منصوبہ تھا جس سے ہم پاکستان کارڈ کے تھرو فلڈ کے متاثرین کو، سیلاب کے متاثرین کو، بارش کے متاثرین کو پیسہ پہنچائے تھے۔ ہر خاندان کو جہاں ضروریات تھا، پوری ملک بھر میں اسی قسم کا پروگرام سی ایم صاحب نے اپنا میٹنگ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میں بھی ریز کیا، اور ہم آپ کے سامنے آپ کے تھرو بھی اپیل کر رہے ہیں کہ اسی ایس او پی کے مطابق، اسی پلان کے مطابق، وہ آپ اپنا دفتر میں پڑا ہوا ہے، اسلام آباد کے کسی دفتر پہ پیپلز پارٹی کا ریلیف کا منصوبہ پڑا ہوا ہے، وہی نکال کے امپلیمنٹ کرے، پورے ملک میں امپلیمنٹ کرے۔ سیلاب متاثرین بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی متاثرین ہے، پورا بلوچستان میں نقصان ہوا ہے، جی کراچی میں بھی ہوا ہے، اور سندھ کے بہت سے دوسرے ڈسٹرکٹس میں بارش کا نقصان بھی ہوا۔ ہمارا انڈس مڈ ٹو ہائی فلڈ میں ہے، کچھے کے علاقے کو میں رہنے والے لوگوں کو ہم نے ابھی سے شفٹ کیا ہے۔ پورا صوبہ میں 2.5 ملین پاکستانیز افیکٹڈ ہے۔ اس قسم کا نیشنل ڈیزاسٹر کے لیے سارے پاکستان کو ایک ہونا پڑے گا تاکہ ہم اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکے۔ یہ صرف ایک کرائسس نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں آپ کو صرف ایک فلڈ کا مقابلہ کرنا پڑا یا ایک نیچرل ڈیزاسٹر کا، قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہاں کے عوام، ہمارے صوبے کے، ہمارے ملک کا غریب عوام کے کمر کب سے ٹوٹ چکا ہے۔ اس سے پہلے جو کووڈ کی وبا کے دوران معیشت پہ اثرات ہوئے ہیں وہ آج تک اس سے نکلے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور اس سے پہلے جو ٹڈی دل کا لوکس کا حملہ ہوتا گیا، وہ اس سے بھی ہمارے عوام آج تک اس حملہ کا، اس نیچرل ڈیزاسٹر کا بھی متاثرین ہے۔ اور اوپر سے آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ تاریخی بارش کی وجہ سے ایک اور قدرتی آفت ان کے اوپر آ چکا ہے۔ ہمیں ایکسٹرا مزید سپورٹ دینا پڑے گا۔ ہمیں ان کے ساتھ نہ صرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ماڈل ہے، ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے لیے اس قسم کا پورا منصوبہ بندی کرنا پڑے گا، مگر جو فصل کا نقصان ہوا ہے، زراعت اس ملک کی بیک بون ہے، زراعت کو نقصان ہوتا ہے، پورے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ اگر کراچی ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا، اس لیے کراچی پاکستان کا معیشت کا ہب ہے، تو ویسے ہی زراعت ہمارا معیشت کا بیک بون ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں زراعت ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا ان کا مینیفیسٹو کا حصہ ہے، جو آج تک ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے۔ اگر لوکس کا ٹڈی دل حملے کے بعد، تاریخی بارشوں کے بعد اب وقت ہے کہ آپ زراعت کا ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ میرے کسان، ہمارے ہانیوں کا، اس ملک کے کسان کو آپ کو ریلیف پہنچانا پڑے گا۔ بے شک بڑے زمینداروں کو آپ اس سے الگ کر لیں، بڑے زمینداروں کو آپ سپورٹ نہ ہی کر لیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال جب بمپر کراپ ہوگا وہ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں کے غریب عوام، یہاں کے غریب کسان جن کا
کوئی پرسان حال نہیں ہے جو ان کو اس وقت ہنگامی بنیادوں پہ مدد کی ضرورت ہے. ہر فصل کو نقصان پہنچایا گیا ہے, چاہے وہ کاٹن کا فصل ہو, چاہے وہ ہمارا اس بیلٹ میں چلیز ہوتے ہیں, چلی کا فصل ہو, بہت سارے کے سارے نقصان جو ہوا ہے وہ تاریخی نقصان ہے. اور میں انسانی بنیادوں پہ اس ملک کی حکومت سے, پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف آئے, آپ نہ صرف 5 گھنٹوں کے ٹرپ لگا کے واپس جائے, یہاں آئے, یہاں بیٹھے جیسے ہم بیٹھے ہیں, جیسے وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کا پورا ٹیم بیٹھے ہیں, ویسے ہی وزیر اعظم پاکستان نہ صرف کراچی, پورے پاکستان کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ نظر آنا چاہیے. ان کے لیے امداد کے نہ صرف اعلانات, ریکنسٹرکشن, ریہیبلیٹیشن اور اس وقت جو ریلیف کی ضروریات ہے وہ اس ملک کا کیپٹن بنے. اس سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے کیپٹن بن کے نہ صرف ہمارا وسائل میں سے, لیکن ہمیں اپیل کرنا پڑے گا جیسے صدر زرداری نے بیرون ملک سے پیسوں کا بندوبست کیا ہے. ہم اپنے کسان کو, اپنے بارش کے متاثرین کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. ہم آن دا ریکارڈ ہیں آپ کے سامنے. 3 سال سے میں اپنے عوام کا جو مشکلات ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارا NFC میں ہمارا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے. ساروں سال پہلے 116 بلین, پھر اس سال 235 بلین کا ملا ہے. ویسے ہم نے کووڈ میں جو ہمارا امید تھا وفاق کی طرف سے وہ پورا نہیں ہوا. ہمیں اپنا ریسورسز پہ ریلائی کر کے مدد پہنچانا پڑا. اس وقت جو ہماری بس کی بات ہے, جو ہمارے پاس ہے, ہم اپنے عوام میں استعمال کر رہے ہیں. ہم نے اپنا ٹینٹس کا جو سٹاک ہے, ٹینٹس کا سٹاک کو ایگزاسٹ کیا ہے. ہم تو نیا آرڈر کر رہے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ NDMA میں بہت زیادہ سٹاک ہوگا. 2000 ٹن سے کوئی کام نہیں چلے گا. ان کو ہر جو بے گھر متاثرین ہیں اس وقت کم از کم ٹینس پہنچانا پڑے گا. ہم جانتے ہیں کہ ٹائم لگے گا. جن کو جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور وہ تو میر پور خاص کو نقشہ پہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تاریخی بارش اس طریقے سے آتا ہے, سیلاب بھی آتا ہے اور ہمارا LBOD کے مسئلے ہیں کہ ہمیں یہاں پانی ہٹانے سے ٹائم لگتا ہے. اس پورے وقت میں آپ نے پناہ پہنچنا ہے, سر پہ چھت پہنچانا ہے, ٹینٹ کم از کم دے دے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس بارش کی وجہ سے مال پہ, جانوروں پہ نقصان ہو رہا ہے, مسکیٹوز کی وجہ سے, ہمیں اس پہ بھی مدد کی ضرورت ہے. ہم سب پاکستانی ہیں اور سب کو ایک بن کے اس مشکل وقت میں, ہمارا عوام کے مشکل گھڑی میں ساتھ دینا پڑے گا. CM صاحب نے پہلے بھی دورے کیے ہیں مسلسل. ہم اگر جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں ہم وہ بھی کریں گے اور ہم ساتھ ہوں گے ہمارے عوام کے مشکل وقت میں. ہم ان کے ساتھ سیلیڈائرٹی میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی قدرتی آفات آتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں ہمارے عوام کو محسوس یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ان کے ساتھ ہے. جو ہم سے ہو سکتے ہیں ہم کریں گے, لیکن ہم اکیلا ان کے مسائل جو ہے, ہم اکیلا ان کے مسائل کا حل جو ان کو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورا نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے پورا پاکستان کو ایک بننا پڑے گا. پورا پاکستان کو اس نیشنل ڈیزاسٹر کے کلائمیٹ میں, اختلافات اپنی جگہ میں ابھی آؤں گا, بہت سے اختلافات اس وقت بھی چل رہے ہیں, لیکن اس ایشو پہ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے, ہمیں حکومت کا ساتھ چاہیے. میں جانتا ہوں ہمارے صحافی بھائی تو ہمارے ساتھ ہیں ہی ہیں, ہمارے عوام کے ساتھ ہی ہیں اس میں, مگر آپ کے چینل کے مالکان سے اپیل ہے کہ جو بنتا ہے ان کا جائز کوریج نیشنل میڈیا پہ وہ ملنا چاہیے. ہم نے کراچی کے 3 نالوں کو بہت کوریج دیا ہے. NDMA کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان 3 نالوں پہ آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے ہو.
आप पूरे मुल्क का NDMA हो, आपको पूरी मुल्क को अपनाना पड़ेगा। कराची के 3 नालों और मीरपुर ख़ास की अवाम उतने ही पाकिस्तानी हैं। स्वात में आपकी ज़रूरत है, गिलगित बल्तिस्तान में आपकी ज़रूरत है, बलोचिस्तान में आपकी ज़रूरत है। आप अपना ज़िम्मेदारियाँ पूरा करें। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमारे अवाम मुश्किल में हैं, जब हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा तवज्जो मीरपुर खास से मनाजिर आप देख रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। NDMA से मुताल्लिक वो बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि NDMA पूरे मुल्क का NDMA है और उन्होंने कहा कि NDMA को पूरे मुल्क को अपनाना होगा, NDMA अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, वफाकी हुकूमत पर वो तनकीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद में बैठे हैं वो मीरपुर ख़ास को नक्शे में भी नहीं ढूंढ सकते। उन्होंने जिन रिसोर्सेज में वो काम कर रहे हैं उसके मुतालिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जितना हमसे होगा वही करेंगे, हम अकेले इन मसाइल का हल नहीं निकाल सकते, हमें वफाकी हुकूमत का साथ चाहिए, हम बारिश के मुतासरीन को लावारिस नहीं छोड़ सकते। ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो मीरपुर ख़ास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि NFC में हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी मीरपुर ख़ास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 1-2 रोज़ से वो मीरपुर ख़ास में ही बेस कैंप बनाकर बैठे हैं। बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि मीरपुर ख़ास के अवाम जिस मुश्किल में है उसे कौमी सतह पर ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए थी। मीडिया से भी उन्होंने इस चीज़ को रिक्वेस्ट की कि जहाँ जहाँ जिस तरह काम हो रहा है उसको बेहतर तरीके से कवर किया जाए। इसके अलावा जो बारिशों के लिए जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन सिंध हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है उसके मुतालिक वो आगाह कर रहे थे। मीरपुर ख़ास में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मीरपुर ख़ास के अवाम जिस मुश्किल में है उसे कौमी सतह पर ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब हम 24 घंटे कराची की बारिश दिखा रहे थे तो मीरपुर ख़ास में भी बारिश हो रही थी। जब कराची में बारिश रुक गई तब भी यहाँ बारिश हो रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब 2011 में इस नौइयत की बारिश हुई थी तो आलमी सतह पर मुहिम चलाई गई थी। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का बनाया गया फ्लड रिलीफ प्रोग्राम पड़ा है, उसे पूरे मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क के गरीब आवाम की कमर टूट गई है। क्राइम भी सिंध का, मगर ट्रायल पिंडी में। आज तक हम इसका एतराज़ात कर रहे हैं, ये किस किस्म का निज़ाम में होता है? ये कहाँ लॉ की इजाज़त देता है कि आप सिंध का केस पिंडी में ट्रायल करें? और आज जो मजाक ये किस असिस्टेंट होता है जिनका एक किस्म का जादू का तहफ़्फ़ुज़ है, कोई इसका ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। यहाँ तक कि ECL से भी अगर हटना है तो वो जादू के तरीके से जल्द हट जाता है। अगर उसके ऊपर पैनामा के जैसे संगीन इल्ज़ाम है तो उस पर भी कोई JIT नहीं बनता, कोई उनसे हिसाब नहीं मांगा जाता है। और तीसरा, जो नया एक दूसरा स्पेशल असिस्टेंट के बारे में एक बहुत एक्सप्लोसिव स्टोरी आए है, उस पे तो खान साहब इस्तीफ़ा मांगने को तैयार नहीं है। वो तो उस स्पेशल असिस्टेंट ने बड़ा एक जिम्मेदाराना फैसला लिया, जो कि इमरान खान कहता था कि ये इमरान खान का जब भी इल्ज़ाम लगता है करप्शन पर, पहले इस्तीफ़ा दो, हिसाब दो, अपने आप को साफ करो, फिर वापस आए। लेकिन अगैन जैसे मैंने कहा, स्पेशल असिस्टेंट अगर आप होते हो तो एक एक्स्ट्रा स्पेशल तहफ़्फ़ुज़ मिलता है आपको, और इस स्पेशल असिस्टेंट से कोई नहीं पूछ सकता। आपका चैनल पे शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कोई नहीं पूछ सकता कि आपके पास, आपके ख़ानदान के पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर है। और अगर साबिक सदर को हिसाब देना पड़ता है, जो कि हम देते हैं, अपने हिसाब देते हैं, झूठे इल्ज़ामात का भी हिसाब देते हैं, तो हम सब एक है। पाकिस्तान में अगर दो नहीं एक कानून है तो हम सबको एक ही किस्म का जवाब देना पड़ेगा। और आपने जैसे सदर जरदारी से पे नाइंसाफ़ी करके इलीगल जो JIT भी बनाया, एक पूरा सिलसिला चला,
ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ایک قانون ہے سب کے لیے، ہم سب پاکستانی ہیں، تو وزیر اعظم سمیت اسی قانون کے مطابق ان کے اوپر جے آئی ٹی کب بن رہا ہے، ان کا نیب کا گرفتاری کب ہے، کچھ گرفتاری کے بعد نیب انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے نا، تو پہلے وہ گرفتار کرتے ہیں، پھر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پھر وہ کیس بناتے ہیں۔ آج تک خورشید شاہ صاحب تو جیل میں ہیں۔ اگر خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں، اگر صدر زرداری کیسز بھگت رہے ہیں، اگر وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کیسز بھگت رہا ہے، تو پھر برائے مہربانی ان کو بھی ایسی طریقے سے حساب پورا سلسلہ چلا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ایک قانون ہے سب کے لیے، ہم سب پاکستانی ہیں، تو وزیر اعظم سمیت اسی قانون کے مطابق ان کے اوپر جے آئی ٹی کب بن رہا ہے، ان کا نیب کا گرفتاری کب ہے، کچھ گرفتاری کے بعد نیب انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے نا، تو پہلے وہ گرفتار کرتے ہیں، پھر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پھر وہ کیس بناتے ہیں۔ آج تک خورشید شاہ صاحب تو جیل میں ہیں۔ اگر خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں، اگر صدر زرداری کیسز بھگت رہے ہیں، اگر وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کیسز بھگت رہا ہے، تو پھر برائے مہربانی ان کو بھی ایسی طریقے سے حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو مذاق ہے کہ صدر زرداری سے آپ توشہ کناس کا حساب لے رہے ہیں، اور جو غدار عامر مشرف رہا، جو کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، بس ایسے اے ڈی سی کے پاس کوئی آیا، کہا کہ کنگ سعودی عربیہ کے جو رائل فیملی ہے انہوں نے آپ کا بینک اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا۔ اس میں کیا پرویز مشرف نے وہ توشہ خانہ میں وہ حصہ ڈالا جو اس تحفہ کا پرسنٹیج بنتا تھا، ڈکلیئر کیا؟ اسی نیوز کا آرگنائزیشن جس نے اس اسپیشل اسسٹنس کے بارے میں بہت سے فیکٹ سامنے لے کر آئے، اسی نیوز آرگنائزیشن کہتا ہے کہ پرویز مشرف سابق عامر ڈکٹیٹر غدار کے پاس بیرون ملک جائیدادیں ہیں، پیسے ہیں جو ایف پی آر کے ریکارڈ سے میچ نہیں کرتے۔ کیا کسی میں ہمت ہے کہ ایک سابق عامر جو سرٹیفائڈ غدار بن چکا ہے خود کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کسی نے پیسہ ڈالے، مجھے پتہ نہیں کسی کیسے کتنا، اس سے آپ حساب نہیں بھریں گے؟ یہ مذاق بند کرو۔ حساب ہونا ہے تو سب کا حساب ہونا ہے اور انصاف سے حساب ہونا ہے۔ یہ مذاق کے جھوٹے کیسز پہ حساب نہیں ہوتا، اور اصل حساب کا کیسز بنائیں۔ جب آپ جانتے ہو کہ آپ حساب توشہ خانہ کا نہیں، آپ حساب 18th امینڈمنٹ کا لے رہے ہو، آپ حساب این ایف سی کا وارڈ کا لے رہے ہو، آپ حساب جمہوریت کے لے رہے ہو، تو اگر ہمت ہے اس ایف آئی آر میں کاٹے پھر غداری کا ایف آئی آر ہم پہ کہ ہم نے 18th امینڈمنٹ دیا، ہم نے ڈیولیوشن دیا، ہم نے اپنے عوام کو ان کا حق پہنچایا، اور آپ وہ حق واپس لینا چاہتے ہو۔ جو حق ہم نے سندھ کو، بلوچستان کو، پختونخوا کو، گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو، پنجاب کو دیا، آپ ان سے چھیننا چاہتے ہو۔ یہ آپ کا مقصد ہے، تو پھر یہ ڈکی چھپی جھوٹی کھیل کھیلنا بند کرے اور سامنے آئے، ڈکلیئر کرے کہ یہ ملزم ہے، انہوں نے یہ 18ویں ترمیم ہمیں دیا ہے اور ہم ان کا ٹرائل کریں گے، اس ٹرائل کا ہم حساب دینے کو تیار بھی ہے۔ یہ مذاق کا بکواس جو آپ کر رہے ہیں یہ بند کرنا چاہیے۔ یہ انصاف کا نظام کا توہین ہے۔ ہمارے عوام مشکل میں ہے۔ آپ کے جو سیاسی گیمز ہیں، جو انتقام ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک پوز ہو سکتا ہے۔ جب پاکستان کے عوام مشکل میں ہے، ہم نے سب ایک ہو کے ان کا مدد کرنا ہے، تو کیا فرق پڑتا کہ اس دوران جو ہے آپ ہمیں کام کرنے دیتے؟ صاحب تو چلتا رہے گا۔ یہ دوگلا نظام نہیں چلے گا۔ جو پہلے ہمارے عوام کا ایکسپیکٹیشنز جو ہم نے 2011 میں وفاقی حکومت کی طرف سے سپورٹ ملا، نہ صرف ہمیں، ہر سیلاب کے متاثرین کو، وہ ہمارا مطالبہ ہے، وہ یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے۔ آپ کے فائل میں، آپ کا ڈراور میں وہ پلان پڑا ہوا ہے، امپلیمنٹ کرو۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ انصاف ہو، سندھ کے عوام کے ساتھ انصاف ہو۔
थैंक यू। अब्दुर्रहमान रिंद साहब माइक आपस में बात कर थोड़ा तेज ही करा माइक में थोड़ा माइक आपने फरमाया कि बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में निशानदेही भी की गई थी और वफाक को ये इशू भेजा किया था कि ये हल करे। अनफॉर्चुनेटली वो वापस मुशर्रफ के दौर पे हमारे पास आया और हम बहुत से जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स है जिसके लिए बहुत पैसा की ज़रूरत है वो अब तक नहीं हो सके। ब्लॉकेजेस को हटाना है, वो स्ट्रक्चरल फॉल्ट है LBOT और LBOT का। नॉन इंक्रोचमेंट्स का तो हर जगह एक इशू है, लेकिन जो LBOT हमारा नेशनल वाटरवेज को ब्लॉक करते हैं उस हिस्सा को हमें मॉडिफिकेशंस करके वो नेशनल फ़्लो को रास्ता देना है। बहुत से जगह पे ड्रेन्स ही नहीं है जिसका नुकसान भी आप देख रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा मंसूबा है जिसके पास आपके एक दम में पूरा का पूरा करना शायद वसाइल ना हो। हम कोशिश करेंगे कि जो ये ब्लॉकेजेस है जो LBOT की वजह से नेशनल ड्रेन्स में ब्लॉकेजेस हुए हैं उनका जो LBOT की वजह से नेशनल ड्रेन्स में ब्लॉकेजेस हुए हैं उनका जो यहाँ हमारा ब्रीफिंग हुआ था 1-2 दिन पहले, उसमें हमने देखा कि अगर पूरा एक वक्त में नहीं हो सकता, हम 5 बिलियन का अंदाज़न खर्चा पे इस इशू को एड्रेस कर सकते। तो हमारा ये कोशिश होगा, लेकिन हमारा साथ साथ ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि NFC अवार्ड के बारे में तो मैं मुसलसल आपके बारे में हमारा केस पेश कर रहा हूँ, वो नहीं दिया जा रहा है, देना चाहिए। हमारा पैसा बाकी उनके पास है, आगे भी देना चाहिए। अगर देते हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सिंध के अवाम का पैसा पड़ा हुआ है और पैसा आना है। इस पैसा मैं चाह रहा हूँ कि हम सिंध के अवाम के पानी के इश्यूज हल करने में इस्तेमाल करें। मलीर से कश्मोर तक, कराची से कश्मोर तक हमारा पानी के मुख्तलिफ इश्यूज हैं। यहाँ का जो LBOT का इशू है जिसका बहुत ही पैसा की ज़रूरत है, उससे हम इस पैसा से अगर एड्रेस करें पूरा सूबा की मईशत के लिए, अवाम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये हमारा प्लान और इशू जो LBOT का है वो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। हम जानते भी हैं और उसका प्रोज एंड कॉन्स का सामना भी करते हैं। सर, आपने देखा किस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ख्वाब दिया रोटी कपड़ा मकान का, लेकिन उसने इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए, इस मुल्क के किसान के लिए, उस मुल्क के मजदूरों के लिए ये ख्वाब नहीं रहा, हकीकत में तब्दील कर दिया। जिनके लिए 5-5 मरहला प्लॉट्स बांटे, जिनके लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए, जिनके लिए नेशनलाइजेशन किया गया था, जिनके लिए बाहर पाकिस्तान बैरून मुल्क काम करने को इजाज़त नहीं था, उनके हाथ में पासपोर्ट थाम के बाहर नौकरियों का बंदोबस्त की गई। इसका मतलब है रोटी कपड़ा मकान। शहीद बीबी की हुकूमतें मशहूर होती थी कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। जो मुआशी तरक्की शहीद बीबी के दौर में हुआ वो आज ऑन रिकॉर्ड में है। बाकी दौरों के मुकाबले में शहीद बीबी के दौर सबसे आगे थे। मतलब रोटी आप और मकान आप दे रहे हो, जब मुआशी तरक्की होता है वो नतीजा होता है। सदर सरदारी के दौर में आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दिया, वो आज तक चल रहा है। वो नाम तब्दील करने की कोशिश करते हैं लेकिन शहीद बीबी को अवाम के दिल से मिटा नहीं सकते। और आज तक रोटी कपड़ा और मकान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में, जो ये लोग एहसास सब कह रहे हैं, उसकी सूरत में गरीब औरतों को मिल रही है। सदर सरदारी ने जब हमारे सिपाहियों के तनख्वाह में 175% इजाफा किया, उनको रोटी कपड़ा और मकान को यकीन दिलवा रहा था। जब तनख्वाह में इजाफा किया, जब पेंशन्स में इजाफा किया, यही कर रहा था। और हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि तरक्की पसंद सियासत और तरक्की पसंद मईशत ही इस मुल्क के गरीब अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। रोटी कपड़ा और मकान को अगर आपने हकीकत बनाना है तो आपने गरीब का, मजदूर का, किसान का, छोटे ताजिर का, सफ़ेद पोश तबका का खिदमत करना पड़ेगा।
फिर हम इस ख्वाब को आज का नस्ल के लिए, इस जनरेशन के लिए पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। उन्होंने कहा है कि कराची राफा से प्लान था, उसके मामले पर ड्रामेबाजियां हो रही हैं, उस पर अमल शुरू नहीं हो रहा। कहा गया था एक हफ्ते के बाद अमल शुरू करेंगे, बच्चे के पीछे गुम हो जाते हैं, फिर अमल करके ड्रामेबाजी। सर मेरा तो समझ से ये बाहर है, इनका मसला क्या है। अब हमने वज़ीर आज़म साहब का 5 घंटों का विज़िट जो रहा कराची का, उसका एक दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मेरा सिंध हुकूमत का 8 अरब का मंसूबे ये है, ADP का लिस्ट ये है, मंसूबा बंदी का लिस्ट ये है, ये मेरा मंसूबा है। आप हमारा 800 बिलियन का या मीट करें या डबल करें तो फिर कराची में एक इनकलाब आएगा। उससे एक दिन पहले वज़ीर आला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये आज तक हमारे, अब तक ये हमारा प्लान है, इसमें जो भी आप हिस्सा डालना चाहते हैं साथ मिलके हम काम करें। मैंने कराची को जो ये प्लान है इससे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया भी, जो पीपल्स स्क्वायर कराची का है वो इस हिस्सा का एक प्लान का एक हिस्सा है। 800 बिलियन जो सिंध हुकूमत कराची पे खर्च कर रहा है वो हमारा कराची के लिए प्लान है। उसमें सिर्फ इसलिए आप हमें अपना हिस्सा नहीं देते हैं तो उसमें सिर्फ सिंध हुकूमत का पैसा मौजूद नहीं है। हमने पहले से कर्ज लिया है, लोन लिया है, सॉफ्ट लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, मुख्तलिफ इदारों से, ADP से, और हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल जो हम पूरे पाकिस्तान को इस मॉडल में लीड कर रहे हैं, और रीजन में एक एग्जांपल है सिंध सूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। हम इन तीनों चीज़ों से मिला के हमारे सिंध हुकूमत के लोन्स, हमारा सिंध हुकूमत का बजट और हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 800 बिलियन का जो प्लान्स है वो कराची में है। और मैंने आई वेलकम, जब मुझे ये खबर आया कि वज़ीर आज़म साहब ने 1000 बिलियन का जो उसने कहा है, मैंने उसका वेलकम किया। इसलिए वेलकम नहीं किया कि मैं समझता हूँ कि मैं मुतमिन हूँ उस फंड से, या मैं मुतमिन हूँ शायद वो स्कीम से। इस बात पे वेलकम किया कि आखिर 2 साल बाद ये सिंध का एक तो कैपिटल का तो सोच रहा है, कहीं ना कहीं काम करने का इरादा है, तो मैंने खुले दिल के साथ इसको वेलकम भी किया। लेकिन जब मुझसे सवाल पूछा जाता है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि वफाक का और सिंध का कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसमें मैंने जो पहले बात किया है मैं वो दोहराता हूँ कि 800 हमारा है और वफाक का 300 बिलियन, 100 बिलियन अपना पैसा का और 200 बिलियन प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस पर इतना तकलीफ कि आज तक जब हम तो मुतासरीन के साथ घूम रहे हैं, तो हम इधर मीरपुर खास में हैं, इन डूबे हुए अवाम का मदद करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने KCR पे काम शुरू नहीं किया। अब हिस्सा दो, काम करो या ड्रामाबाजी बंद करो। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब अपने वज़ीरों को रोकेंगे, अपने लोगों को रोकेंगे कि कराची के हद तक काम करें। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। अगर यू कांट पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, एटलीस्ट चुप रह के मदद करें ताकि ये डिलीवर कर सके हम। और ये बहुत अहम बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1000 बिलियन अपनी जगह, उसमें कोई पैसा नहीं है रेन के मुतासरीन के लिए, सैलाब के मुतासरीन के लिए। हमने जो रिक्वेस्ट किया है वज़ीर आज़म साहब कि सिंध का ADP और पाकिस्तान का PSDP अपनी जगह, वर्ल्ड बैंक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के मंसूबे अपनी जगह, हमें रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है। कराची के रेन के इलाके के मुतासरीन के लिए भी, सैलाब के मुतासरीन के लिए भी, लेकिन जहाँ जहाँ सैलाब आया है, जहाँ जहाँ बारिश के मुतासरीन हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, और आज तक आपने उनके लिए 1 रुपया प्लेज नहीं किया। तो हमारा जो 3 R's पे मुबनी प्लान है, जो वफाक में पाकिस्तान कार्ड, वतन कार्ड के मंसूबा हमारा रहा है, वो आज का ज़रूरत है, हर मुतासरीन की ज़रूरत है, और हमें उस पर एक बन के उनसे मुतालबा करना चाहिए। और
जहाँ तक कि बिल्कुल, जहाँ तक K4 की बात है, आज तक जो सिंध हुकूमत ने उस पर बहुत काम किया है, आगे जाके भी हमारा बहुत काम रहेगा उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो उनका कंपोनेंट रहता है वो मुकम्मल करेंगे। अगर ये होता है हमारा कैपिटल के लिए, आपका कैपिटल के लिए एक बहुत अच्छा मंसूबा होगा, हो जाए। बट वी बीन हियरिंग दीज प्रोमिसेस, बड़ा एहतराम के साथ और इज़्ज़त के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज से नहीं, ये पहला अनाउंसमेंट नहीं है वज़ीर आज़म साहब का। इसने पहले भी 165 बिलियन का ऐलान किया था। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ का दौर था, उस वक्त भी वफाक ने ऐलानात किए हमारा तरक्की के लिए। हमारा लॉ एंड ऑर्डर ऑपोजिशन का बिल जो हमने 50-50 उठाना था, वफाक ने अपना 50% नहीं दिया। तो हमारा जो माजी रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि तब्दीली आएगा और वो अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। जहाँ तक IG की बात है, वही पॉइंट आ जाता है कि एक पाकिस्तान होना चाहिए जहाँ एक कानून है। सिंध हुकूमत अगर अपना IG तब्दील करना चाहे, इस वक्त हमारा IG मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है ज़बरदस्त, लेकिन अगर जो भी वो करना चाहे, तो आपने देखा किस तरीके से हर अदारा और वफाकी हुकूमत हमने हिलने नहीं देती। इससे लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में असरात होता है, और वो जो नुकसान हुआ भी वो भी आपके सामने है। वो जो टाइम और वक्त जिसमें वफाक सूबाई हुकूमत से लड़ रहा था, IG का पोजीशन कंट्रोवर्शियल भी हो गया था, और लॉ एंड ऑर्डर का आज तक कश्मीर, शिकारपुर, हर जगह आप देखें, आज तक हम नुकसान भुगत रहे हैं। पंजाब में 6 IGs तब्दील हो चुके हैं। हमारा कोर्ट मैंडेटेड लिमिट है कि 3 साल या जो भी उनका है, वहाँ वो 2 महीने बाद तब्दील करते हैं। तो ये होगा तो अवाम सवाल पूछेंगे। बेहतर होता अगर हर पाकिस्तानी, हर सूबा के साथ एक ही सलूक किया जाता, और उम्मीद है कि आगे जाके ऐसे ही होगा। इमरान खान का मंशूर पुलिस रिफॉर्म्स की बात, इमरान खान यहाँ आके पता नहीं कहाँ कहाँ जाके हमें पख्तूनख्वा का मिसाली पुलिस का एग्जाम्पल देता था, और कहा कि मैं पंजाब में ये करेगा। पंजाब में जो पुलिस का रेपुटेशन है वो अपनी जगह, वो वसीम अकरम प्रेस ट्रीटमेंट के बाद ना जो उसका अभी इज्जत रहा है वो भी आपके सामने है। राशिद सलीम साहब, जी राशिद साहब, नो डॉलर नहीं, रुपीस। देखो अगर आप दूसरा क्वेश्चन पूछे भी दोनों का। दूसरा मेरा सवाल है कि फाटफ ये जो अभी इजलास हो रहा है, अक्टूबर में इजलास होगा, पहले इसकी सरबराही कर रहा था चीन, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बचने की उम्मीद करता कि बच जाएगा, लेकिन अब तो आ गया जर्मनी के हाथ में कि जर्मनी इसकी सरबराही करेगा। तो अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हुआ तो फिर पाकिस्तान में क्या असरात होंगे, और अपोजिशन उसके लिए क्या करेगी? अपोजिशन गवर्नमेंट का साथ देगी? ओके, जहाँ तक आपका सवाल है, पता नहीं, ये जो आपने कहा है कि वो कह रहे हैं कि हम तो सिंध को 300 रुपया नहीं देंगे, एक तो शर्म होना चाहिए उनको। अवाम हमारे डूब रहे हैं, किसान का फसल तबाह है, 2.5 मिलियन डिस्प्लेस है, और वफाक जो हमारा गैस से, हमारा रेवेन्यू से चलता है, कह रहा है कि 300 रुपया भी नहीं देगा। फिर आप ये ज़रा सोचें, अगर मेरा वज़ीर आला ऐलान करता कि हम टैक्सेस में और रेवेन्यू में 300 रुपया नहीं देंगे वफाक को, गद्दारी का सर्टिफिकेट्स नहीं बांटे जाते, पेट्रियटिज्म का शक नहीं पूछा जाता, ये दोगला निज़ाम बंद होना चाहिए। जैसे पता नहीं ये क्या समझते हैं कि किसके पैसे हैं, इस मुल्क के अवाम के पैसे हैं, पूरे पाकिस्तान से पैसा जमा होके इस्लामाबाद चलता है, और उनका जिम्मेदारी है कि मुश्किल में वो साथ दे ना। अगर वो नहीं मानते हैं कि हम पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है और हमें हमारा हक, हमारे अवाम को उनका हक, दे आर एंटाइटल्ड टू देयर राइट्स, फिर वो कह दे। लेकिन ये जो बचकाना स्टेटमेंट्स हैं, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं, या वज़ीर आज़म साहब को इनको डिसऑन करना पड़ेगा,
कहना पड़ेगा इस्तीफ़ा लेके जवाबदेही करके, या हम समझेंगे, पाकिस्तान के अवाम समझेंगे कि ये इमरान खान का खुद ख्यालात है, ये इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खुद बयानिया है कि आम तौर पे जो हक है आप नहीं देते, लेकिन जब वो कुदरती आफात से, सैलाब से भी मुतासर है, तब आप इस किस्म की सियासत करते हो। इंसान बनो फिर सियासतदान बनो, इंसान बनो फिर वज़ीर बनो। ये मैं समझता हूँ गैर ज़िम्मेदाराना अप्रोच है जो फ़ौरन हल होना चाहिए। ये सियासत के बरतर अलग से कोई इश्यूज़ होते हैं जिनको हमें ज़्यादा ऐसे पेश नहीं करना चाहिए। जहाँ तक फैटिफ की इशू है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जॉइंट अपोजिशन के अमेंडमेंट्स मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हम अगले सेशन में, अगले जॉइंट सेशन में हमारे अमेंडमेंट्स के साथ, माने हुए साथ ये पास कर सकते हैं। वरना हम संगीन जो है एतराज़ात भी उठाएंगे। कुछ हमारे सख्त एतराज़ात है कि आप फैटिफ के मत पे पाकिस्तानी की बुनियादी हुकूक में, पाकिस्तान के अवाम के इंसानी हुकूक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप पुलिस को पावर देंगे कि वो गिरफ्तारी कर सकते हैं वारंट के बगैर, पाकिस्तान के अवाम का उसमें इंसानी हुकूक का अंडरमाइन हो जाते हैं, ड्यू प्रोसेस अफेक्ट हो जाते हैं। जहाँ तक चाइना हो या जर्मनी हो, अब अगर आप सही काम कर रहे हो, हम ना सिर्फ कानून साजी, इस कानून साजी तो एक पोर्शन है ना, कानून साजी के साथ साथ अमली तौर पे वो स्टेप्स लिया जाए जो इट्स इम्प्रेशन पूरा दुनिया में जाए कि एक दोगला सिस्टम नहीं चल रहा है और हम दहशतगर्दों को पकड़ना चाहते हैं, तो ब्लैक लिस्ट से हम हटेंगे। लेकिन हम ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट या फैटिफ से हमें डरा के वो हम अपने अवाम के हकूक़ पे सौदाबाजी नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। नबी पहुंच सकती है। नहीं, आप सर शाह महमूद कुरैशी साहब का हम इज़्ज़त करते हैं, मगर वो तो आता है अपना मुरीद से अपना हिस्सा लेने के लिए, देने के लिए नहीं आता। और मैं खुश हूँ कि जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं हम मौजूद हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि अपोजिशन भी होगा। हम तो चाहेंगे कि हम अपोजिशन के साथ मिल के काम करें। अगर एक अपोजिशन का मेंबर का इलाका डूब गया है तो वो भी सिंध का हिस्सा डूब गया है, हम वहाँ भी मदद करना चाहेंगे, साथ मिल के काम करना चाहते हैं। तो हमेशा जहाँ कुदरती आफात रहे हैं उसमें सब ने अपना हिस्सा डाला, किसी ने नहीं समझा कि कौन किसका वोटर है, कौन कहाँ का है। हमने सब मिल के काम करना है और उम्मीद है कि वफाक भी यही फ़िलासफ़ी अपनाया जाएगा। जैसे कि स्वात में मेरा पार्टी मौजूद है, मलकगंज कटोर पे किए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ 2-3 दिन पहले मैंने जब फ़ोन पर बात किया था वो नुकसान हो रहा था, वहाँ हमारे लोग मौजूद है। कोशिश तो हम अपने तौर पे करते हैं, लेकिन सब मिल के अगर हम कोशिश करते फिर हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। मैं अभी से कह रहा हूँ, सिंध हुकूमत के पास ये वसाइल नहीं है, ये फिस्कल स्पेस नहीं है कि हम जो हम चाहते हैं अपने मुतासरीन के लिए करें, मैं वो कर सकूं। वो मैं आप नंबर भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो फिगर सामने आ रहा है, जो इसका नुकसान होता तो 67 बिलियन का नुकसान सिर्फ उसमें फसल का कंपोनेंट नहीं है, उसमें जो लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ है, जो घर का पक्का
घर का या कच्चा घर का नुकसान हुआ है, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है, वो नंबर है। हम अपना पूरा रिसोर्सेज अपील भी करते हैं कि जो भी डोनेट कर सकते हैं, जो भी बेच सकते हैं, टेंट्स बेच सकते हैं, मच्छरों से बचने के लिए, खुद आवाम को बचाने के लिए, उनका जानवर को बचाने के लिए, हेल्थ जिसमें आप दवाइयाँ एक्सेट्रा, ये पानी रहेगा, बीमारियाँ फैलेगा, इसमें जो भी पहुंचा सकते हैं इस मुश्किल वक्त में, हम वो उसका अप्रिशिएट करेंगे। हम भी रिचार्ज कर रहे हैं, अपने मेंबर्स भी डोनेशंस कर रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से हम जो भी हो सकता है एक सूबाई हुकूमत के लिहाज से हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा उम्मीद वफाक से है। हम वफाक से चाहते हैं, इस्लामाबाद से चाहते हैं कि वो हमें अपनाया जाए, वो हमारे अवाम को अपनाए और उनके दुखों पे अजाला भी करे, साथ सॉलिडारिटी भी दिखाए। और जो माजी में रहा है प्रेसिडेंट, जो आपका डिज़ास्टर में, इसी किस्म का डिज़ास्टर में एक SOP रहा है कि पाकिस्तान कार्ड बटेगा, उनको वो मिले, वो उनका एक्सपेक्टेशन है इस वक्त। और क्यों नहीं एक्सपेक्टेशन हो, क्यों नहीं एक्सपेक्टेशन हो कि जब इस किस्म की कुदरती आफात होता है, अपना मुल्क आपके साथ खड़ा होगा। तो आज भी हम इमरान खान की हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि वो फ़र्क नहीं देखेगा और वो ये काम करेगा ज़रूर। हुकूमत तो बड़े एतमाद से कह रही है कि अपोजिशन की एटीट्यूड में से कुछ नहीं निकलेगा, अपोजिशन की तमाम जमातें एक दूसरे को धोखा दे रही हैं और ये सब मिलकर फिर फजल रहमान को धोखा दे रहे हैं। मीरपुर खास में बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दो रोज़ से मीरपुर खास में बेस कैंप बनाकर बैठे हैं। मीरपुर खास के आवाम जिस मुश्किल में है उसे कौमी सतह पर ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए थी। जब हम 24 घंटे कराची की बारिश दिखा रहे थे तो मीरपुर खास में भी बारिश हो रही थी। जब कराची में बारिश रुक गई थी तब भी यहाँ पर बारिश हो रही थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब 2011 में इस नौयत की बारिश हुई थी तो आलमी सतह पर मुहिम चलाई गई थी।